Hello students, today we are going to solve exercise question of chapter number 4 in science subject. So let's start the chapter. First is checkpoint. Circle the correct answers. Number 1, polar bears, camels, deer live in cold areas. Correct answer is polar bears. Polar bears live in cold areas. Number 2, gills, lungs, air holes in fish help them to breathe in water. Answer is gills. Gills in fish help them to breathe in water. Number 3, arboreal, aerial, aquatic animals fly in the air. Answer is aerial. Aerial animals fly in the air. Question number A. Tick the correct answers. Number 1. The natural home of an animal is called its Option A, house. Option B, nest. Option C, habitat. And option D, water. The correct answer is option C, habitat. Number 2, terrestrial animals breathe through Option A, air holes. Option B, gills. Option C, lungs. And option D, scales. Answer is option C, lungs. Number 3, it is a term used when an animal sleeps for several months to protect itself from cold. Option A, hibernation. Option B, respiration. Option C, extinction. And option D, digestion. The correct answer is option A, hibernation. Next, number 4, carnivorous animals have well developed. Option A, biting teeth. Option B, tearing teeth. Option C, chewing teeth. And option D, grinding teeth. The answer is option B, tearing teeth. Number 5, this adaptation helps animals to protect themselves. Option A, big nose. Option B, slow movement. Option C, small eye. And option D, camouflage. The correct answer is option D, camouflage. Next, question number B. Write T for true and F for false. Number 1. A snake crawls on its legs. False. Number 2. Animals that live both in water and on land are called amphibians. True or false? Answer is true. Number 3. Animals that spend most of their time on trees are called aquatic. This statement is right or wrong? Wrong. Then write false. Number 4. A giraffe is an omnivore. Answer is false. Number 5. Animals that live on or inside the body of other animals are called parasites. True. Next, question number C. Complete the table with suitable statements.
हमें इनके सूटेबल स्टेटमेंट्स का सूटेबल स्टेटमेंट लिखकर टेबल को कंप्लीट करना है। मीन्स टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का मूवमेंट कैसे होता है, उनके ब्रीथिंग ऑर्गन्स क्या होते हैं, और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के कुछ एग्जांपल्स लिखने हैं। वैसे ही हमें एक्वाटिक के भी सेम मूवमेंट, ब्रीथिंग ऑर्गन्स और एग्जांपल्स लिखने हैं। एम्फीबियंस के भी मूवमेंट, ब्रीथिंग ऑर्गन्स एंड एग्जांपल्स लिखने हैं। एरियल एंड अर्बोरियल ये सेम जो 5 टाइप्स के एनिमल्स है, टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड पर रहने वाले, एक्वाटिक मीन्स ये वाटर में रहने वाले, इन सारे एनिमल्स के हमें कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं। फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल में मूवमेंट, लेग्स टू मूव ऑन लैंड। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के लेग्स होते हैं लैंड पर मूवमेंट करने के लिए। एक्वाटिक के मूवमेंट कैसे होता है, फिन्स और लिम्स। एक्वाटिक मीन्स पानी में रहने वाले, तो उनके वाटर में मूवमेंट किससे करते हैं, वो फिन्स होते हैं या फिर लिम्स होते हैं उनके मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट एम्फीबियंस, इनके भी लिम्स होते हैं मूवमेंट के लिए। एरियल मीन्स जो एयर में रहने वाले एनिमल्स है, हवा में उड़ने वाले, वो मूवमेंट किससे करते हैं, उनके विंग्स से करते हैं। अर्बोरियल्स, क्लॉज एंड ब्रॉड हीप गिर्डल्स, जो ट्रीज पर रहते हैं एनिमल्स, उनको क्या बोलते हैं हम, अर्बोरियल एनिमल्स। ये क्लॉज और ब्रॉड हीप गिर्डल्स से मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के भी ब्रीथिंग ऑर्गन्स क्या होते हैं, वो किस ऑर्गन्स से, उनमें कौन सा ऑर्गन्स प्रेजेंट रहता है जिससे वो ब्रेथ ले सकते हैं। तो टेरेस्ट्रियल में क्या होता है, लंग्स। एक्वाटिक में गिल्स। एम्फीबियंस में मॉइस्ट स्किन एंड लंग्स, उनकी मॉइस्ट स्किन से भी वो ब्रेथ ले सकते हैं और लंग्स भी होते हैं। एरियल में लंग्स एंड अर्बोरियल में सेम लंग्स। अगेन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के भी एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, हॉर्स एंड एलिफेंट। एक्वाटिक के एग्जांपल्स फिश एंड टर्टल। एम्फीबियंस के एग्जांपल फ्रॉग एंड टोड। एरियल के एग्जांपल क्रो एंड स्वेलो। अर्बोरियल के मंकी। नेक्स्ट डी, राइट शॉर्ट आंसर्स। व्हाट इज एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या होती है, आंसर द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग टू सूट द सराउंडिंग्स इज कॉल्ड एडेप्टेशन। मीन्स हम जहाँ रह रहे हैं, जिस प्लेस में हम रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप में कुछ चेंजेस करना, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसमें सूट होने के लिए चेंजेस का जो प्रोसेस होता है, उनको हम क्या कहते हैं, एडेप्टेशन। नंबर 2, हाउ डू एनिमल्स लिविंग इन कोल्ड रीजन्स कीप देमसेल्व्स वार्म। मीन्स कोल्ड रीजन में जो एनिमल्स रहते हैं वो अपने आप को गर्म कैसे रखते हैं। आंसर, दे हैव एडेप्टेड बाय हैविंग फर ऑन देयर बॉडीज टू कीप देम वार्म। मीन्स कोल्ड रीजन में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी पर थिक एंड लॉन्ग फर होते हैं, हेयर होते हैं, जो उनकी बॉडीज़ को क्या रखते हैं, वार्म, गर्म रखते हैं। नंबर 3, व्हाट आर अर्बोरियल एनिमल्स। अर्बोरियल एनिमल्स क्या होते हैं। सम एनिमल्स स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन ट्रीज, दे आर कॉल्ड अर्बोरियल एनिमल्स। मीन्स कुछ एनिमल्स होते हैं जो अपना मोस्ट ऑफ टाइम होता है वो कहाँ पर स्पेंड करते हैं, ट्रीज पर स्पेंड करते हैं, तो उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, अर्बोरियल एनिमल्स। एग्जाम्पल जैसे मंकीज, ट्री लिजर्ड्स। नंबर 4, वाई डू मोस्ट herbivores have long and strong legs। मीन्स मोस्ट ऑफ हर्बीवर्स एनिमल्स है उनके लेग्स लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं। आंसर, मोस्ट हर्बीवर्स हैव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ फूड। मीन्स मोस्ट ऑफ हर्बीवर्स एनिमल्स के लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स क्यों होते हैं, बिकॉज उनको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है। उन किसके लिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, वो अपने
फूड के लिए, तो उनको फूड के सर्च के लिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उनके लेग्स लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्वेश्चन नंबर ई, आंसर दिस क्वेश्चंस। नंबर 1, द फ्रॉग इज एन एम्फीबियन, हाउ इज इट एडप्ट टू लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर? मीन्स फ्रॉग एक एम्फीबियन एनिमल है, तो वो लैंड पर और वाटर दोनों पर कैसे रहता है? आंसर, द फ्रॉग हैज़ एडप्ट टू लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर. It has limbs that help it in swimming, a moist skin which helps it to breathe in water. Means frog दोनों लैंड और वाटर में ईजीली रहता है, बिकॉज उसके क्या होते हैं, लिम्स होते हैं. मीन्स लिम्स उनके क्या काम आते हैं, मूवमेंट के लिए. वाटर में जब वो रहता है तो मूवमेंट के लिए उनके लिम्स होते हैं, तो स्विमिंग ईजीली करता है. और उनकी ब्रेथिंग के लिए उसके पास क्या होता है, मॉइस्ट स्किन्स, जो उसके वाटर में मॉइस्ट स्किन उनके ब्रेथिंग में हेल्प करती है. एंड लंग्स विच हेल्प इट टू ब्रीथ ऑन लैंड. और जब वो लैंड पर रहता है तो वो किससे ब्रीथ लेता है, अपने लंग्स से. बिकॉज एम्फीबियंस एनिमल्स फ्रॉग में 2 टाइप्स के ब्रीथिंग ऑर्गन्स होते हैं, मॉइस्ट स्किन और लंग्स. मॉइस्ट स्किन उनके वाटर के अंदर ब्रीथिंग के लिए काम आती है, और लंग्स उनके लैंड पर ब्रीथिंग के लिए काम आते हैं. नेक्स्ट, नंबर 2, वाई डू एरियल एनिमल्स हैव लाइट बॉडीज. मीन्स एरियल एनिमल्स के बॉडीज लाइट, मीन्स उनका वेट कम क्यों होता है? आंसर, एरियल एनिमल्स हैव लाइट बोन्स एंड फेदर्स. देयर लाइट बॉडीज enable them to fly. मीन्स एरियल एनिमल्स के बोन्स और फेदर्स कैसे होते हैं, लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, उनका वेट कम होता है, और ये उनकी लाइट बॉडी होती है, उनको हवा में उड़ने के लिए, फ्लाई करने के लिए हेल्प करती है. नंबर 3, व्हाट आर द डिफरेंट वेज बाय विच एनिमल्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. एनिमल्स को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पास डिफरेंट टाइप्स के वेज कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं? आंसर, एनिमल्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स बाय मूविंग वेरी फास्ट. मीन्स वो अपने आप को एक तो कैसे सेव कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मूविंग वेरी फास्ट चलकर या भागकर. एंड बाय camouflaging with the surroundings so that they cannot be seen by their enemies. और नेक्स्ट उनका वे है, जैसे उनके आसपास का जो एरिया है, एनवायरनमेंट है, वो अपने आप को उसके जैसा चेंज कर देते हैं. जैसे कलर चेंज कर देते हैं, उनके जैसा शेप बना लेते हैं, तो उनके एनिमीज़ उनको ईजीली देख नहीं पाते. नंबर 4, हाउ डू एनिमल्स लाइक फिश, elephant and leaf insect protect themselves. means fish, elephant and leaf insect अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? आंसर, फर्स्ट, फिशेज मूव फास्ट इनफ टू एस्केप फ्रॉम दियर एनिमीज. फिश अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करती है? अपने एनिमीज से बहुत फास्ट भागती है, मूवमेंट करती है, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती है. नंबर 2, एलिफेंट्स आर टू बिग टू बी ईटन बाय अदर एनिमल्स. और एलिफेंट्स है वो बहुत बिग एनिमल है, तो वो कोई भी अदर एनिमल्स को ईजीली खा लेता है, उसको ईट कर देता है, तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं. नंबर 3, लीफ इंसेक्ट्स लुक लाइक अ लीफ विच हेल्प्स देम टू मर्ज विद दियर सराउंडिंग्स. और लीफ इंसेक्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने एनिमीज को देखते ही अपने आप को चेंज कर देते हैं, एक लीफ के जैसे ही कलर या उनका शेप ले लेते हैं, तो जल्दी से उनको एनिमीज़ को दिखते नहीं है. थैंक यू स्टूडेंट्स.